Good afternoon, everyone. We will just start in few minutes. Most of the students have not joined. Let them join just for a minute or two. They will just be here. ठीक है सर।
All right. Hi, everyone. So we will begin now. Most of you have joined. So before everyone joins, let's quickly recapitulate what we have learnt in the earlier class. And today I'll keep my camera off. Reason being, I have a very slow network because of heavy rain in Mumbai. So yeah, I will share the screen. All right. So first we talked about magnetic field due to a current element. What was that? dB was KIDL sine theta by r square. Then we talked magnetic field due to a straight current carrying wire. What was that? Anyone can write in the chat. Due to straight finite current carrying wire. Mu naught I by 4 pi A sine phi 1 plus sine phi 2, whereby phi 1 and phi 2 were the angles made with respect to the ends, है ना? Okay, चलेगा k I by a, k I by a, because this is k only, times sine phi 1 plus sine phi 2. Okay, later on we used Ampere's circuital law. Okay, yes, before that we also talked about magnetic field due to a circular wire on the axis. What was that? Mu naught I by 4 pi. So they were cut. So we got mu naught Ni. I'll write for n number of turns. Ni a square by 2 r square plus x square raised to 3 by 2. So this, instead of a, I'll write x. This distance you can consider any distance. After this, what we learned, right? This is due to finite wire. Infinite, that's not a case. वो इसी का एक डिवीजन है, इसी का एक डेरिवेटिव है. Later on we also found magnetic field due to a circular wire at the center. क्या होता था? We just used Biot-Savart's law, integrated that so that dl becomes 2 pi r. So वो भी हम separate formula use नहीं करेंगे. We will also say that is the derivative of this. But yes, mainly we focused on Ampere's circuital law, whereby Amperian loop must be present, and that was a closed loop. And according to that, I can find out the magnetic field by using this formula, whereby I is the enclosed current. So what was the condition for this Ampere's circuital law to be determined, right? I'm not talking about to be found, to be determined was that I can only evaluate this integration when b comes out to be constant or uniform. तभी हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. Okay, so now we will move ahead. We will focus on the questions from this Biot-Savart's law and Ampere circuital law. So we finished level 1 in class exercise. So I probably hope that you all guys are doing the homeworks. जिनको कुछ डाउट्स हैं दे कैन आस्क मी, नहीं तो फिर
We will keep doing the questions and then move ahead to solenoid and toroid today. But probably we will start with solenoid toroid in the next class. Now we will solve the questions and at the end we will just see Kahoot today. कोई डाउट नहीं है तो अच्छा डाउट है आर्यन टेल मी द पेज नंबर ना वरना वो मैं टाइप कर दूंगा पेज नंबर आई कैन क्विकली स्क्रॉल दैट नंबर 9 क्वेश्चन 7 and 8 ओके पेज नंबर 9 क्वेश्चन 7 and 8 सेवेंथ वन हमने डिस्कस कर लिया है सेवेंथ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है मैं फिर भी एक बार चलो और आइडिया दे देता हूँ साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड है क्वेश्चन आई विल गिव यू आइडिया होप दैट शैल वर्क नहीं तो आप पहले के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो उसमें इन डिटेल मैंने ये सेवेंथ और एट्थ समझाया है ठीक है हम आइडियाज जरूर लेंगे कि क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में बाकी कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन नहीं कौन सा फिर पेज नंबर 9 7 8 यही क्वेश्चन है Sir, it is 18.2 question number 7 and आई कैन सी पेज नंबर 9 पे तो यही है अच्छा 18.2 में क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क वाले में से ये वाला है ये है क्या दिस क्वेश्चन आर्यन ओके जस्ट टेल मी पेज नंबर ना पेज नंबर 9 पे तो वो क्वेश्चन था अच्छा मैं यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके टेल मी this question you can see this is on page number 14 yes, sir, 7th one. okay Sir, I think we have got the newer edition of modules. That's why page numbers are different. कहाँ है वो न्यूअर मॉड्यूल्स ईमेल में या फिर गूगल क्लासरूम में Sir, we have the hard copy. We have all. अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलेगा चलेगा कोई बात नहीं लेट अस डिस्कस दिस हाँ ये हमने डिस्कस नहीं किया है ये आज हमें डिस्कस करना था ये सारी चीजें इन 18.2 मैं 18.1 की होमवर्क की बात कर रहा था ओके a sphere of radius r uniformly charged with surface charge density sigma radius इसकी r है surface charge density what it is charge per unit area it rotates around the axis passing through its center at an angular velocity okay let us say जो axis है that is passing perpendicular to this screen तो मैं ऐसे बना दिया मतलब कि एक्सिस अंदर जा रहा है ऐसे भी कह सकता हूँ इंडिकेटिंग परपेंडिकुलर है इस प्लेन के and it is rotating at an angular velocity omega this sphere
find out the magnetic induction at the center of the rotating sphere. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से हमें ढूंढना है. Okay, so here we can see the charges are present, it is scattered, and if we consider, let us just focus on a small element of the ring, just a small element. So there will be some current due to that small segment. And why that current will be there? Because that charge is having some angular velocity. अब angular velocity क्या होता है? V into R, right? So I will show the segment here. I will focus on a small current element. This is a quite big question. तो ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट मैंने किसी रीजन पे कंसिडर कर लिया. V इज इक्वल टू आर ओमेगा. चलो ठीक है, ये एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया. एंड आई एम कीपिंग द ट्रैक दैट दिस करंट एलिमेंट इज एट एन एंगल थीटा. तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा. Okay, now what will be the charge which will be present over that? Now this is a sphere, right? This is a sphere. तो sphere का जो segment होगा इस width का, right? इस width को मैं dl ले लिया. तो dl ये देखोगे तो एक circular section मिलेंगे हमें, because this is sphere, right? This is not a ring. I cannot consider only this dl. dl consider करके उसी width का हमारे पास कुछ ऐसा section मिलेगा. So what will be the charge enclosed in that section? dq पहले तो हम, let us say this is r, ये r यहां से हटा दिया. Let us say this is r. So if we apply d theta is equal to dl by r. तो dl क्या हो गया? r d theta. So the charge that will be enclosed in this, we have to just find out that charge, and once we find out that charge, it will be done. So if we look at the component, इस r के दो कंपोनेंट हम लेंगे. एक तो होगा r sin थीटा इधर और इधर r cos थीटा. सो ध्यान से देखो तो इस करंट एलिमेंट और इधर के करंट एलिमेंट के वजह से हमारा r sin थीटा, r cos थीटा जो फैक्टर है ये वाला, इसके वजह से किधर होगा? एक इधर का भी कंपोनेंट देख लेते हैं. ये हो गया और फिर ये हो गया. यस, सो साइन थीटा के कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे. इफ वी लुक एट डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन, इसके अपोजिट इधर सेक्शन अगर देखें, ठीक है, इधर अगर सेक्शन देखें तो हमें क्या मिलता है? इसके वजह से एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर. हाँ, तो इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये. तो डी क्यू जो अभी हमारा आएगा दैट विल बी, तो पहले तो इसका वेट ले लिया, वो हो गया हमारा. रेडियस क्या होगा? ये एक सर्कुलर सेक्शन जो होगा उसका रेडियस क्या होगा? आर कॉस थीटा, राइट? ये रहा आर, इधर होगा आर कॉस थीटा. ये जो कंपोनेंट है यही इसका रेडियस होगा, राइट? सो 2 पाई आर कॉस थीटा टाइम्स डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स. ठीक है, वो सिग्मा हम बाद में देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, सिग्मा को इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ चार्ज. तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर इंटू, यहां पर कह सकते हैं डी थीटा इंटू सिग्मा. लेट मी लुक एट योर एक्सप्रेशन. डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा
2 pi r, नहीं ये कैसे होगा एक्सप्रेशन अभिराम? यू हैव जस्ट स्टेटेड दिस एक्सप्रेशन dq इज इक्वल टू सिग्मा 2 pi x इंटू dx, ये नहीं होगा ना? dq हमें ये देखो, सिग्मा अगर हमने लिखा, सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, हमें निकालना है चार्ज, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट एरिया। तो एरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने उसके पेरीमीटर लिया और फिर इस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ये विड्थ से। तो dl क्या हो गया, r d थीटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये रख दिया। इज दिस क्लियर? ये क्यों नहीं होगा, ये होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये एक्सप्रेशन को। क्या मिलेगा, डी क्यू विल बी 2 pi r² सिग्मा cos थीटा इंटू डी थीटा। नाउ वी विल फाइंड आउट द करंट। करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट दिस। अच्छा, अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव टू change this theta in terms of the omega given to us, right? या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम अगर हम कंसिडर करेंगे टाइम पीरियड, देन आई कैन समवॉट इंक्लूड दिस ओमेगा। तो मैं वही इंक्लूड कर देता हूं, डी क्यू बाय टाइम कैपिटल टी। तो डी क्यू हमारा क्या है, वील जस्ट पुट दैट डी क्यू, एंड टी क्या है हमारा, 2 pi by omega. So we will just put this expression here and we have the current with us. So omega by 2 pi cancel हो गया ना, ये और ये. So omega r square sigma cos theta d theta. ठीक है. Now we can easily figure out the magnetic field. So what expression we will use for magnetic field? एक छोटे से करंट, एक छोटे से एलिमेंट के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला. So we will use Biot-Savart's law. Mu naught I, what was Biot-Savart's law? Mu naught, या फिर mu naught, or let's say in terms of k only we can write. So let's take in terms of k. So k ideal sin theta by r square. Okay, if you look at the angle, that angle here, if you look at this dl element, ये जो सर्कुलर एलिमेंट हमने लिया है रिंग के फॉर्म में, the angle made with respect to current flowing and dl and r vector, generally we look at dl vector and r vector. So इसके रेस्पेक्ट में अगर एंगल देखो, dl और r vector 90 डिग्री, so sin theta मैं हटा देता हूं. I'll use this expression for Biot-Savart's law, so I will put that and I'll get db as k, i के जगह ये रख दिया, ओमेगा आर स्क्वायर सिग्मा कॉस थीटा डी थीटा, आई हो गया, फिर dl हो गया. dl क्या है, dl के जगह फिर मैं रखूंगा so we will get d square theta. It becomes quite complicated, so we have to again modify at this. Okay, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, I will apply magnetic field due to that ring. ये देखो, ये एक रिंग है ना, अब रिंग के वजह से एक्सियल पोजीशन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, राइट? सो वी विल अप्लाई दैट डिराइव्ड फॉर्मूला, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, नहीं तो ये आर स्क्वायर डी डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट. सो लेट अस अप्लाई दैट. उसको अप्लाई किया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या मिला, म्यू नॉट आई
mu naught I, and then we get this divided by, downwards we had 2 r square plus x square raised to 3/2. so वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, थीटा बस एक है एंड देन वी शुड बी एबल टू डू दैट. ये अब हो जाएगा या फिर इसको भी एक्सपैंड करें? यहां तक हमने कर लिया ना, उसके बाद बस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर एलिमेंट एट द एक्सियल वाला लगा के और उसको सेंटर वाला कन्वर्ट करके लगाना है. तो हमारा मोटिव क्या हो रहा है कि हर इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और ऐसे ऐसे एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन में हमारा जो डी थीटा है, मतलब थीटा, थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा? 0 से 90 डिग्री तक. हाँ, माइनस 90 टू 90, क्योंकि 0 से 90 हमने यहाँ से यहाँ तक ही इसको कर पाएंगे. या फिर 0 से पाई कर लो ना, 0 से पाई कर लो. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम 0 से पाई करेंगे, 0 से 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो यहाँ ये 0 से लेके 180 तक जाएगा तो हमारा सारा लूप, मतलब सारा सेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा. ये हो जाएगा. इसके बाद शुड आई मूव या फिर इसको कंप्लीट करना है? Yes, you said the right step. Who asked me this one? Abhiram. That di will be dq by t. चलो हो जाएगा अब. और इसके बाद कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. ठीक है, तो देन लेट्स कंटिन्यू. So question number 6, we will do number 1 first. तो जल्दी जल्दी करेंगे. सभी कोई करेंगे और दे विल टेल मी द आंसर. और जिनका जिनका होते जाएगा दे विल ऑल्सो टेल मी दैट दिस इज डन. ऑलमोस्ट 50% का होना चाहिए. नो नो नहीं करना है. जिनका हो जाएगा बस वो यस करो, मुझे पता चल जाएगा.
कि ऑलमोस्ट 20-30% बच्चे कर चुके हैं। Okay, all right. Now most of you have done. So we will just discuss the first part. So two long straight parallel wires are 2 meters apart. These are the parallel wires. एक में cross है means the current is going into. So the wire A carries a current 9.6 directed into the plane. इसमें current कितना जा रहा है 9.6 amps. And the wire B carries current such that the magnetic field of induction at point P at a distance of 10 by 11 meters from the wire B is 0. यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन बी. इसमें करंट कितना है उसको ढूंढना है. सो these are two long straight wires, means infinite का केस लगाएंगे यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर. So we will apply that expression of magnetic field due to infinite wire. What is that? 2K Can, I. yeah, you can also remember Ampere's law if you do not want to remember the formula again and again. Just use mu naught I by 2 pi into distance. Okay, so magnetic field due to the first wire, इसके वजह से क्या होगा? mu naught into 9.6 by 2 pi into 2 plus 10 by 11. Very simple. And this magnetic field should be equal to the magnetic field due to this wire. तभी तो कैंसिल होगा, राइट? डायरेक्शन अपोजिट होंगे. इसके वजह से लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? लेफ्ट में होगा पॉइंट पी में. जस्ट अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. Thumb in the direction of current, you will see all the fingers are being able to be curled in this direction. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा. तो जीरो कब होगा? जब ये इक्वल होगा. तो जस्ट इक्वेट दैट म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस क्या होगा? 10 by 11. सो वी विल जस्ट कट देम. वील गेट 9.6 by 32 11 equal to I 11 by 10. So you will see I to be 9.6 by 3.2, that is yes 3 ampere we get. नंबर 2 सभी करेंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस. अब पॉइंट एस पे निकालेंगे. देखो यहाँ पर कुछ एंगल नहीं है, तो लेट अस फर्स्ट डिटरमाइन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं. सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये 90 डिग्री है. सो एंगल डिटरमाइन करने का मेन मकसद ये है, एंगल डिटरमाइन करने का मेन मकसद ये है कि हम नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. राइट, इफ आई टेल यू कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड 1, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड 2, और अगर ये एंगल पता है ना, देन वी कैन जस्ट अप्लाई वेक्टर इक्वेशन एंड फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो 90 डिग्री है तो बात और सिंपल है. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर जाएगा, है ना. 90 डिग्री पे, चलो ये 90 डिग्री एंगल है तो कुछ कर्व्ड बनेगा इसके वजह से. ठीक है. सो एट पॉइंट एस यू विल फाइंड एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक इधर है. तो मैग्नीट्यूड निकालना है नेट का. सो दैट विल बी अंडर रूट, पहले इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. तो इसके वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. म्यू नॉट आई बाय 2 पाया. तो करंट तो पता है अब हमें. अच्छा, लेट्स मॉडिफाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. इसको हम ऐसे कर देते हैं 4 इंटू 2, तो 2 के आई बाय आर ये यूज करते हैं. तो 2 के जो होगा वो इसके एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड हमारे पास बचेगा रूट अंडर I1 square by R1 square plus I2 square by R2 square. So just put here, you will get 2 into
k का वैल्यू क्या है 10 टू पावर -7 रूट ऑफ I1 3 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस 1.2 स्क्वायर, I2 9.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस 1.6 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? ये 6 स्क्वायर हो गया और ये 2.5 स्क्वायर, ये हो गया 6 2 5 36 42 2 5 कितना होगा 35 अगर करें तो 1225 हो जाएगा, 65 अगर करें तो ओके दिस विल बी 6.5, तो हमारा आंसर आएगा 13 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ पे थोड़े फास्ट चला गया मैं, तो अगर कुछ है क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी। दिस वाज जस्ट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट फॉर यू। दे विल रेज हैंड जिनको डाउट है इस पे, अगर नहीं है तो नंबर 3 करेंगे एंड नंबर 3 आंसर विल बी गिवन बाय, जो भी आंसर मिलेगा मैं कोई रैंडम 3 स्टूडेंट्स पिक करता हूं, दे विल टेल मी, so I be sure you all are following me. So Anisha will tell me, Aryan will tell me, and Koshi will tell me, Koshi Jain। ये 3 बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, जो भी आया आंसर बस मुझे बताओ। ओके, आर्यन से 13 टू का नहीं बताना है, सभी कोई नंबर 3 का बताओ मुझे। 2 का तो निकाल लिया हमने, 13 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। So part 3 answers will be given by Anisha, Aryan and Koshi Jain. Okay, Aryan says 2.8 into 10 to power -6 न्यूटन्स पर मीटर। हाँ ये हमने देखो, ये पैरेलल वायर्स वाला ना हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है इसके एक्सप्रेशन को, बट ध्यान दोगे तो इसके थ्योरी और डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, बस बायोट सावर्ट्स लॉ और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसको बस, या मूविंग चार्ज, यू हैव टू जस्ट कंबाइन देम। जल्दी करना है अनीशा एंड कोशी, कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है यू कैन टेल मी द आंसर्स। Okay, Anisha says 2.76 times 10 to power -6. Good. दो आंसर मैचिंग मिले मुझे। कोशी विल टेल मी 2.8 इंटू 10 टू पावर -6। वेरी गुड। चलो, ये पहले तो ये टेस्ला नहीं होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा न्यूटन्स पर मीटर। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। So let me just calculate
ओके 2.8 टाइम्स 10⁻⁻6, चलो सही आ रहा है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट I1 I2 by 2πr, and directly you will use this, you will get the answer. So let us first explore this one which is remaining, and then we will do the leftover questions. So here we will talk about the force between two parallel wires. पैरेलल वायर्स हो सकते हैं, पैरेलल रॉड हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट इन दीज टू पैरेलल वायर्स current should be flowing. So I must say force between two parallel current carrying wires. अच्छा, अब फोर्स होगा क्यों इसमें? लेट अस फर्स्ट सी दैट। ये रहा एक वायर, ये रहा दूसरा वायर। सो क्लोजली वी विल सी वायर 1, वायर 2। let us say they are carrying current in the same direction. So this is the first case we will explore, जहां पर current सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, करंट इन सेम डायरेक्शन। दूसरा केस, जब करंट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये रहा I1, ये रहा I2, एंड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। Okay, so first thing what I assumed here in order to explain that these current carrying wires are lying in the plane of this computer screen. इस प्लेन पे ही ये वायर लाई कर रहे हैं दोनों केसेस में। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट वायर फर्स्ट। इस वायर के वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमें क्या दिखेगा कि वायर ऐसे से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, राइट? प्लेन में लाई नहीं करेंगे सर्कल्स। यूज राइट हैंड थंब रूल। what will be the direction of current? No, direction of magnetic field at any point on this second wire. let us say इस पॉइंट पे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? वायर 1 के वजह से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनटू द प्लेन। just use right hand thumb rule. Put the thumb in this direction, you will see the 4 curled fingers are in this direction going into the plane at this point. Okay, so this is the direction of magnetic field and current is flowing in this direction. So we know that force on a current carrying wire is I V L sin theta, right? या फिर ऐसे कह सकते हैं Q V क्रॉस B था ना, या V B sin थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा I L क्रॉस B। सो L वेक्टर किधर है? देखो इधर है ना L वेक्टर। बी वेक्टर अंदर है, तो L क्रॉस बी के जगह मैं लिख दूंगा बस LB, बिकॉज साइन 90 इज 1। सो दिस इज द फोर्स। तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, व्हाई दिस फोर्स इज प्रेजेंट? दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अनदर वायर प्लेस्ड नियर इट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? आई विल राइट B1 टू इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। तो वायर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जस्ट यूज एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्विकली। सो म्यू नॉट I1, remember I am talking about field due to this, so I1 divided by 2 pi into, let us say, distance between the wires are D. So I'll put this in this expression. So I'll find out the force on wire 2 due to wire 1, right? On wire 2 due to wire 1। तो वायर 2 पे हम निकाल रहे हैं, तो 2 का करंट लेना है, राइट? सो I2 इंटू वायर 2 का लेंथ लेना है, सो L2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफकोर्स किसी और के वजह से होना चाहिए, दैट इज B1। सो पुटिंग दिस वी गेट F21 क्या हो रहा है? I2
into L2 into B1 is mu naught I1 by 2 pi d। L2 को यहां लाया तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। ये क्लियर है सभी को एक्सप्रेशन? सो कैन एनीवन टेल मी इस पे जो फोर्स लगा किस डायरेक्शन में लगा? फोर्स का डायरेक्शन मुझे चाहिए। अब वायर 2 पे जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा? लेफ्ट में लगा। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। यूज राइट हैंड पाम रूल। 4 fingers नाउ इन दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट 4 fingers। हमारे पास ये 4 थे फिंगर्स और एक ऐसा था। so this was in the direction of current, 4 fingers in the direction of magnetic field। तो जो palm होता था that palm used to give us the direction of force। so put here you will see that palm is facing towards wire 1। ऐसे ही वायर 1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सभी को ही बताओ मुझे। इधर या इधर या इधर या इधर, किधर लगेगा? लेफ्ट राइट अप डाउन। वायर 1 पे टुवर्ड्स वायर 2। सेम वे में इसको भी एनालाइज flowing in the same direction, then in this case the two wires attract each other। two wires क्या करते हैं दोनों? they will attract each other। okay, the next point हमने निकाला force on wire 2 due to wire 1 per unit length। force per unit length ये किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, मतलब दोनों के करंट पे डिपेंड कर रहा है। सो आई मस्ट से फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 is equal to force on wire 1 due to wire 2। I must also say this, right? Magnet in terms of magnitude they are equal provided that they have equal lengths, है ना, and same currents। okay, so this is possible when lengths are same and they carry same current। सो ये केस 1 सबको समझ में आया और ये एक्सप्रेशन याद रखना है। केस 1 अगर समझ में आ गया तो केस 2 कुछ भी नहीं है। इन द सेम मैनर you all can analyze case 2। okay, then in case 2 प्रद्युमन ए, you will tell me कि केस 2 में वायर्स विल अट्रैक्ट और वायर्स विल रेपेल। कुछ भी बोल देना है। नहीं नहीं अगर निकल रहा है जस्ट लेट मी नो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई, जल्दी से ट्राई करो। इस पे वायर्स अट्रैक्ट करेंगे या फिर वायर्स रेपेल करेंगे when the currents are flowing in opposite direction। देखो एक्सप्रेशन तो यही रहने वाला है क्योंकि इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या है एक्सप्रेशन? लेट अस रिमेंबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है एक्सप्रेशन? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 pi d। वायर्स इन दिस केस विल रेपेल ईच अदर। क्यों रेपेल करेगा क्विकली हम देख लेते हैं। चलो कोई एक वायर को ले लिया, चलो इस बार वायर 2 को लिया, तो वायर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लेट अस सपोज किस डायरेक्शन में होगा? अंदर की तरफ। करंट किधर हो रहा है फ्लो? इधर। तो यूज राइट हैंड पाम रूल। ऐसा नहीं ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट लगा दो और गलत डायरेक्शन ले लो। यूज राइट हैंड पाम रूल जिसमें कि चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और थंब इधर हो, तो तुम्हें दिखेगा कि palm is facing in this direction।
यही सेम चीज हम वायर 2 पे लगाएं, तो वायर 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं, वी हैव टू कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी होगा अंदर की तरफ। करंट नीचे, यूज राइट हैंड palm रूल, 4 fingers in the downward direction, नहीं, 4 fingers in this perpendicular direction, current in the downward direction, so palm will face in this direction. ओके सभी को क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ सर। Okay, good, then we will move ahead with the questions. देखो ये क्या है, ये हो सकता है, ट्राई करो। Yes, D was the distance between the two wires. Yes, Abhiram, I'll just share that once again in case you have forgotten in the last day. मैं चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, तो अभी तो बस लाइव लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे यू विल सी that I'll upload full things as per JE and NEET separately, so you all can well prepare from there. Because अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन कि हम स्क्रीन में क्या कर रहे हैं, सो आई डोंट फाइंड दैट एफिशिएंट, सो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड द बोर्ड, और जैसे ही आ जाता है देन आई विल मेक दैट फॉर ऑल माय चिल्ड्रन, जहां जहां भी मैं पढ़ाता हूं, सो यू ऑल कैन एक्सेस देम, और ये मैं भेज दिया। इसको जल्दी से देखते हैं क्या है। अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and radius r is carrying a current I along its length and current density is uniform. Current density क्या होता है, current per unit area, cross sectional area. There is a cylindrical cavity of uniform cross section and radius r. R radius का cylindrical cavity है. The axis of cylindrical cavity is separated by a distance d from the axis of the cylinder. अच्छा, ये separated है, मतलब कि अगर इधर देखें क्रॉस सेक्शन, तो ये सिलेंडर है बड़ा वाला, रेडियस आर, ये इसका एक्सिस है, राइट। तो जो सिलिंड्रिकल कैविटी है ना, ये जो सिलिंड्रिकल कैविटी है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर बाय डिस्टेंस डी, ये दिया हुआ है। सिलिंड्रिकल कैविटी इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी फ्रॉम
द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, नहीं तो हम ये डिस्टेंस ले सकते हैं, बट क्योंकि पिक्चर में क्लियरली स्पेसिफाइड है सो दैट्स ओके। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। करंट डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे देखते हैं। पहले करंट डेंसिटी जो है करंट पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, मतलब ये एरिया। अच्छा, इसमें ये एरिया तो इंक्लूड नहीं होगा ना, जहां पर कैविटी है वो एरिया तो इंक्लूड नहीं होगा। सो लेट अस फाइंड द करंट डेंसिटी फर्स्ट, which will be I by pi कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको नाम दे दिया जे से करंट डेंसिटी। तो करंट यहां पर जो कैविटी है उसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट विल बी करंट डेंसिटी टाइम्स पाई आर स्क्वायर, राइट। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, इस एरिया को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। Okay, if we look at the magnetic field due to this current at an axial point, so what will that current be? एक्सियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे, इस करंट एलिमेंट के, इस करंट के वजह से, इस वायर कैरिंग करंट, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई। देखो दिस सेज लॉन्ग सिलिंड्रिकल, मतलब हमें इनफाइनाइट का केस लेना होगा। तो इनफाइनाइट वायर के वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो वही यूज करेंगे। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ म्यू नॉट टाइम्स जे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये करंट है आई, दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू आर। अच्छा, आर नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा डी। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें ना तो यहाँ डी माइनस आर कर देंगे, लेकिन जनरली हम, जो डेटा मुझे याद है वो डी यहाँ से यहाँ मेंशन थे, ठीक है। तो इसको हम यही वाला लेंगे डी, ये यहाँ से यहाँ नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ कर लो डी। तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई डी। नाउ this is the magnetic field due to that cavity. So what will be the magnetic field due to the complete section here? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके वजह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया। लेट अस सपोज मैं दे दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सिलेंडर। So if I have to find out magnetic field at the center of this axis of cylinder, so what will I do in that case? एक मैग्नेटिक फील्ड निकला,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मतलब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब हमने करंट डेंसिटी निकाल लिया तो उससे जो करंट हमारा बचा हुआ है या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कैविटी, इसी के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा। So let us just put the value of J here, and that's what we need. Mu naught I pi r square by 2 pi d into pi r square minus r square. So let us check क्या मिल रहे हैं हमें। Mu naught I r square by 2 pi d r square minus r square. Okay, so this is the answer. Can anyone tell me कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला उसमें हमने सिर्फ ये करंट क्यों कंसीडर किया? व्हाई डिड वी कंसीडर दिस करंट थ्रू दिस सेक्शन? बाकी का यस ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। Okay, so this questions, the homeworks that I have given you, I expect you all have gone through that. तो उसमें अगर कोई डाउट्स नहीं है, आप लोगों को नहीं लग रहा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, रैंडमली क्वेश्चंस यहाँ पर पुट करता हूँ। चलो मैं रैंडमली क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ विच आई फील वुड बी गुड टू सॉल्व अपार्ट फ्रॉम सोलेनॉइड एंड टोरॉइड टुडे।